Citizen's Responsibility, Chapter 3, Class 7, SST. How the State Government Works. राज्य की सरकार कैसे काम करती है, इसमें हम पढ़ेंगे. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state and national. जो राज्य की जो सरकार होती है वो 3 स्तर पर काम करती है, एक लोकल, स्टेट और नेशनल. And looked at the work of local government in some details. In this chapter we examine the work of the government at the state level. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का काम देखेंगे जो स्टेट लेवल पर वो क्या क्या काम करती है. How does this take place in a democracy and what is the role of a member of the legislative assembly and ministers. और जो MLA ministers होते हैं उनके क्या काम होते हैं. How do people express their views or demand action from government. We look at these questions through the example of health. Let's take example. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. ये देखो हमारे राज्य में पानी की किल्लत है और लोग बीमार हो रहे हैं. In many villages, people were found to be drinking unclean water. कई गांवों में देखा गया है कि लोग unclean water पी रहे हैं. Streams have dried up. जो नदियां हैं वो सूख गई हैं. And have tanks. And so have tanks. और tanks भी सूख गए हैं, नदियां भी सूख गई हैं. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distance. और गांव के लोगों को काफ़ी दूर से पानी भर के लेकर आना पड़ रहा है, कैरी करना पड़ रहा है. People at the district headquarters, Patlapuram, receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. और लोग गांव में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट्स की भरमार होती जा रही है, मतलब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और बच्चों को एक्यूट डायरिया भी हो गया है. That afternoon, on the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? न्यूज़ में दिखा रहे थे टीवी पर कि कई 10 लोग डायरिया की वजह से मर गए हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लोग सच में डायरिया की वजह से मर सकते हैं? Who knows? Just hope I don't get it. कौन जानता है, शायद काश ऐसा ना हुआ हो. My mother said not to have any iced drinks from the market. मेरी मम्मी कहती है कि मार्केट से आइस ड्रिंक्स लेकर मत पिया करो. She gave one of her lectures this morning. उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे ये बात कही थी. You have to be responsible for your health. तुम्हें अपनी हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो ये दोनों लड़कियां आपस में. This road is blocked due to the rally they have gathered the MLA's residents. Really, why has he done something? Haha, they seem more energy about what he hasn't done. And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility of this.
What a loud voice he has. He must be a leader or something. Shh, I saw him on TV too. Shh, he is a member of the opposition. Who is an MLA? Now we are going to learn about something MLA. In the above section, you have read about some events in Pattalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? Members of the Legislative Assembly are elected by the people. जो MLA होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं and they then become members of the Legislative Assembly and also from the गवर्नमेंट. और ये चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं, सरकार में जाके बैठते हैं. इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल. जो MLA होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, लोगों की बातों को. द एग्जाम्पल बिलो will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. इंडिया के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी होती है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़. और हर स्टेट अलग अलग एरिया में डिवाइड होता है. और कॉन्स्टिट्यूशंस और उनका सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस उनके हिसाब से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो. इट शोज दैट द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 assemblies constitutions. ये हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 एरियाज में डिवाइडेड है, assemblies constitutions में डिवाइडेड है. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the Legislative Assembly and called MLA. उस 68 assemblies constitutions में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जो MLA बनता है और जाके लेजिस्लेटिव असेंबली MLA बन के सरकार में बैठता है. You would have noticed that people stand for election in the names of different parties. और आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग पार्टीज की तरफ से इलेक्शन में खड़े होते हैं. These MLAs therefore belong to different political parties. और सब अलग अलग पार्टीज से रिप्रेजेंट करते हैं उनको. एंड हाउ डू पीपल who are MLAs become ministers or chief ministers? A political party whose MLAs have won more than half the members of constituency in the state can be said to be a majority. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके MLAs स्टेट में और जिनके ज़्यादा जीतते हैं सीट को उनकी पार्टी बनती है. जिनके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जीते गए, जिनके ज़्यादा MLA बने, जिस पार्टी के जीते उनकी पार्टी बनती है जो मेजॉरिटी में हो अपने अपने स्टेट से. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जिसका जितने मेंबर्स जीतते हैं वो उनकी पार्टी को कहते हैं रूलिंग पार्टी, मतलब रूल करने वाली पार्टी. अब इनका राज चलेगा और इनकी सरकार चलेगी. एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशंस.
और जो बाकी बचे हारे हुए होते हैं, जो जीते हुए नहीं, जिनकी पार्टी ज़्यादा वोटों से नहीं जीते होते, जिनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग, वो अपोजिशन में जाते हैं, और जो ज़्यादा जीते होते हैं वो मेजॉरिटी में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLS कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 68 MLS कॉन्स्टिट्यूशंसी है कि 68 जगह से लोग चुनाव लड़ेंगे, इलेक्ट करेंगे। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया। Using a pencil, outline the following on the map given on 67 page. The state that you live in, the state of Himachal Pradesh. Candidates from various political parties won the 2017 Assemblies elections and become MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, the political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. अब 68 लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और उनमें से 34 MLA अगर जीतेंगे तो मेजॉरिटी में बनेंगे, मेजॉरिटी उनकी बनेगी, उनकी संख्या बनेगी। एंड द भारतीय जनता पार्टी विथ 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी। अब जिसके नेता होंगे वो जीतेंगे, जिनके ज़्यादा जीतेंगे उनकी पार्टी राज करेगी। तो जिनके MLA ज़्यादा जगहों से जिसे वोट लड़ेंगे और जिनके ज़्यादा जीतेंगे उनकी पार्टी बनेगी और उनकी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहेंगे। और जो बाकी है, जिनके MLA नहीं, जिनकी पार्टी के MLA ज़्यादा नहीं जीते हैं, तो वो अपोजिशन में जाके बैठेंगे। ऑल अदर MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ MLA पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी के बाद उसमें सबसे ज़्यादा MLA हैं। अमंग द oppositions were other parties, including those who had been elected as independent candidates. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leaders who will become the chief minister. और फिर जिनकी पार्टी के MLA ज़्यादा जीतते हैं, रूलिंग पार्टी यानी, तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब इन सब MLA में से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। सो इन दिस केस द BJP MLAs choose Shri Jai Ram Thakur as their leader and he become the chief minister. तो जैसे बीजेपी के MLA, बीजेपी जीती, बीजेपी की सरकार बनी और उनके जो MLAs थे उसमें से उन्होंने चुना श्री जयराम ठाकुर को कि ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर। He became the chief minister. The chief minister then select other people as minister. और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ही और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार इस राज्य में जो चलेगी तो इसका मंत्री कौन बनेगा, वो चीफ मिनिस्टर ही सिलेक्ट करते हैं। And the elections, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other minister. और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड सेड मिनिस्टर्स and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministers. चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, और उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको वो अच्छे से रन करें, उनको अच्छे से
उनको देखें। एंड दे हैव सेपरेट ऑफिस। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. और MLAs जो होते हैं और ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जगह पर बैठते हैं और आगे क्या करना है, कैसे करना है, मीटिंग करते हैं, काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एंड हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कुछ एमएलएज की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। किसी एक एमएलए को दो मिनिस्ट्रीज भी दे दी जाती है। इसका मतलब उनको दो डिपार्टमेंट्स को भी हैंडल करना पड़ता है। वन एज एन एमएलए एंड द अदर एज अ मिनिस्टर। एक तो एमएलए भी है और एक वो मिनिस्टर्स भी हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर। हम इसको इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेवल पर सदन बैठता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें डिबेट होती है। अफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited after security checks. They were taken upstairs and there was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows of desks. This assembly was going to have a debate on a current problem. कुछ बच्चों को लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाने के लिए दिल्ली में लेके जाया जाता है। वहाँ पे वो बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स देखते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, फिर उनको सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है और वहाँ पे एक रॉ होती है, डेस्क की पूरी लाइन से डेस्क लगे होते हैं और वहाँ पे उस असेंबली में कुछ देर में एक डिबेट होने वाली होती है और किसी एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन होने वाला होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. और फिर ये सारे एमएलएज बैठ के अपने ओपिनियंस देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इश्यूज जो प्रॉब्लम होती है, जो मसला होता है उस पर बात करते हैं एंड अपने सजेशंस देते हैं और सब डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Those who wish to can respond to this, और सारे बैठे होते हैं और जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकता है खड़े होके